मुझे चाहिए कहीं पे गुड मॉर्निंग बच्चा। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग बच्चा। हाउ आर यू ऑल? Fine. That's good. Good morning, ma'am. Good morning बच्चा। Good morning, ma'am. How are you, ma'am? Good morning. Good morning. How are you, ma'am? I'm very fine बच्चा। How are you all? Namaskar, ma'am. Yeah, fine, ma'am. Fine. Namaskar, ma'am. Good. Okay. Now, so how many participants? Only 12 now. Chalo, let's wait for a minute. Okay. Till everybody is joining, so let's start with prayer. है ना? तब तक सब join हो जाएंगे. Right, बच्चा? Yes. Everyone muted, right? So join your hands and close your eyes. Everyone, join your hands and close your eyes. Let's begin our maths class with a prayer. Om Bhurbhuvasvaha Tassavituर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Rub your hands. Palm on your eyes. Yes, a very fresh morning to all of my dear little kiddos. Now, so what we did in last class? Who is going to tell me what we have done in last class? Anyone? Write in your chat box. I'm going to ask them. Who is going to tell me that what we have done in our last? Yes, Mahil Gajr. Okay, Mahil bacha. Very good. Chalo, Mahil को unmute करती. Okay, Mahil. Yes, Mahil. Unmute yourself, bacha. Ma'am, in our last class, bacha. our last class, we have learned chapter 8. Very good. We have introduced chapter 8, right? That is chapter 8, geometry. हमने क्या इंट्रोडक्शन किया था? ज्योमेट्री का, राइट? ज्योमेट्री क्या होता है? We have done it last class, right? That is on Saturday. Okay? Now, आज हम ज्योमेट्री के बारे में और थोड़ा लर्न करना है, राइट? हमें. So, take out your textbook and don't worry, it is in textbook only, right? No notebook work. So, 156 से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? पेज नंबर एंड वी विल मूव ऑन. क्योंकि आज हमें 56 से करके हमें एक्सरसाइज 8.1 भी करना है, राइट? So take out your textbook, page number 156. We will recap the last class का थोड़ा सा and then we will move forward, right? So everyone ready with your textbook, बच्चा? And please tell me, anyone, am I audible and visible to everyone? Board visible, my voice audible? No. Okay, Palvi. Anyone else? Yeah. Anyone else? Am I audible? Okay, Dhyani, yes. It means Pallavi, just leave and join the class, बच्चा. Anyone? किसी और को मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ, नहीं सुनाई दे रहा, please write. So I think everyone is audible, right? Okay. So जिसका नहीं है शायद नेटवर्क इशू, तो please. Yes, Mehta ji, your book is with me and I have given to your mom. You was not here and yes, उसके पहले मैंने आपको बोला आप ले जाना, but आपने लिया नहीं. So no problem, समत मेहता. कल स्कूल आ जाना, हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, right? Don't worry about that. I'm sending you book today.
आपका इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट करना बच्चा, राइट? चलो बच्चा, so today we are going to learn about more about geometry, right? In last class we have finished with a lab activity. हमने देखा कि लैब में भी देखा गया कि आपको शेप सिखाए मैंने, राइट? एंड आज हम और पढ़ेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा ज्योमेट्री. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेस. राइट आद्या पटेल, feeling sleepy? आद्या, go and wash your face and sit. नींद आ रही है बहुत, राइट? सो इन आवर लास्ट क्लास आई टोल्ड यू कि व्हाट इज पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? अ डॉट is known as point. A dot is known as point, right? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट की तरह, राइट? नाउ इस पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद अ नेम, कैपिटल लेटर अल्फाबेट से. बी, कैसे भी, इट्स अप टू यू कि मुझे क्या नाम देना, राइट? ए टू जेड तक तो कोई भी कैपिटल लेटर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पॉइंट का कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं होता है. पॉइंट का कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं होता है, राइट? एंड ये भी मैंने आपको बताया था कि हम एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. कोई भी एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सी, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, वॉट एवर यू कैन. एक पॉइंट से हम बहुत सारी अनकाउंटेबल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. दिस वाज द फैक्ट फॉर द पॉइंट, कि पॉइंट से हम कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? सो पॉइंट इज क्लियर कि पॉइंट क्या था. लास्ट में भी हमने किया था, लास्ट क्लास में भी. नाउ इट कम्स टू लाइन. इट व्हाट इज लाइन, राइट? LINE. लाइन क्या होती है, राइट? When the infinite number of points are joined, a line is formed. जब infinite numbers of point, मतलब बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, और जब हम इसको ज्वाइन करते हैं ना, राइट? जब इसको हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ये ज्वाइन किए, फिर ऐसे ज्वाइन किए, या यहाँ से कहीं गए, फिर यहाँ भी पॉइंट से है, यहाँ, तो कई लाइन जब ज्वाइन करते हैं, उस पॉइंट जब ज्वाइन करते हैं, देन दैट इज नोन एज लाइन. व्हेन इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट से, राइट? बहुत सारे पॉइंट से ये हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, these are known as lines, right? Infinite numbers of points are joined, तो उसको हम लाइन बोलते हैं. A line extends indefinitely in both the direction. और लाइन जो है both direction, मतलब इधर भी जाता है, उधर भी जाता है. Line are moving in both the direction. यहाँ भी है और यहाँ भी जाता है, right? Line is moving both the direction, right? Line is moving in both the direction. So we can say कि पॉइंट ए से और ये पॉइंट बी से हमारा ये लाइन, और ये लाइन ये क्यों है? क्योंकि यहाँ इसका एंड नहीं है. इट इज मूविंग हियर, राइट? इसलिए हम यहाँ पर एरो देते हैं, क्योंकि ये एरो तो कि ये इसका स्टॉप नहीं, इसका एंड नहीं है. वी हैव स्टार्टेड, यहाँ से हमने लाइन ड्रा कर लीजिए, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी है. सो नो एंडिंग एंड नो स्टार्टिंग. पॉइंट है ही नहीं इसका, इट्स कंटिन्यू, इट इज गोइंग ऑन, और यहाँ भी ये कंटिन्यू जा रहा है. और लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे दो एरो से. दो पॉइंट हुआ और ये एरो हुआ. अब इस लाइन को आप नेम दे सकते हो, दैट इज एम. इसको हम स्मॉलर लेटर से नाम दे सकते हैं, राइट? लाइन ए बी यू कैन कॉल, या लाइन एम, वी कैन गिव वन नेम, राइट? और इसका सिंबल हम लाइन बोलेंगे, मतलब ये एक लाइन हुआ और इसके ये एरो है, इसको हम लाइन बोलते हैं. क्योंकि वाई दिस एरो इज गिवन, इट मीन्स इसका एंडिंग नहीं है. दिस इज गोइंग, इसका दिस इज गोइंग. आपने देखा होगा कि हम जब आप राजकोट की कहीं भी हाईवे पे कहीं जाते हो, किसी में पता है ऐसे लाइन्स रहती है ऐसे. इट मीन्स कि ये रास्ता यहाँ भी जाएगा और ये रास्ता यहाँ भी जाएगा. कहाँ खत्म होगा दे डोंट नो. सो इट इज मूविंग. सपोज यहाँ पे लिखा है राजकोट, इट इज गोइंग, राइट? यहाँ जा रहा है, यहाँ सूरत लिखा हुआ है. इट मीन्स ये सूरत के साइड जाएगा जाएगा जाएगा. एंडिंग इज नॉट देयर. फिर कहीं से यहाँ आगे जाके फिर आपको ये आएगा कि यहाँ है, इट मीन्स अब यहाँ जाना है. इट मीन्स कि ये एरो दिखाता है कि इसका एंड नहीं है, वो आपको वे बता रहा है कि यहाँ सीधा सीधा जाओ, आपको रास्ता मिल जाएगा, राइट? सो दैट इज नोन एज लाइन. दैट इज नोन एज लाइन. टू कैपिटल लेटर, दैट इज ए एंड बी. जैसे मैंने बताया ए एंड बी, लाइन ए एंड बी. वी कैन ऑल्सो डिनोट इट बाय सिंगल. और अगर हमको इसको डिनोट करना है सिंगल अल्फाबेट से, तो भी हम कर सकते हैं एम. तो भी हम कर सकते हैं एम.
अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। हमने यहाँ से लाइन बनाया, अब ये मूव ऑन किए जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, दोनों ये मूव किए जा रहे हैं, देयर इज नो एंड। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन। अब लाइन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। नाउ व्हिच आर द टाइप? स्ट्रेट लाइन, मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हम करेंगे। लाइक टाइप्स ऑफ लाइन होते हैं स्ट्रेट और कर्व, राइट। लाइन के टाइप कितने होते हैं? स्ट्रेट लाइन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, और एक हो गया कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, राइट। नाउ यू कैन सी कर्व, जैसे ये कर्व, राइट। हैव यू सीन द रेनबो? रेनबो, इसमें कर्व लाइन आती है। और ये रोड, कभी हम जब रोड पे, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम मोरबी से राजकोट जा रहे हैं, राइट। हम अपने घर से निकले, यहाँ भी रास्ता है, यहाँ भी रास्ता है, पर हमें यहाँ राजकोट जाना, इट इज मूविंग टू राजकोट, हम सीधा सीधा जा रहे हैं। वेयर इट इज एंडिंग वी डोंट नो, ये सीधा सीधा जा रहा है, राइट। फिर हमारा डेस्टिनेशन आ गया राजकोट में कि हमें ये वाला चौकड़ी में उतरना है, तो हम वहां अपनी टर्न कर लेते हैं, बट स्टिल दिस रोड इज गोइंग, फिर भी ये रोड चल ही रहा है, ये तो हमारा स्टॉप आ गया, हम उतर गए राजकोट में, राइट। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेट लाइन, और ये हो गया कर्व लाइन। जब हम रेनबो देखते हैं, राइट, रेनबो इज गोइंग ऑन, यहाँ से कलर होते चालू हुआ, ये गोइंग ऑन, नो एंड। ओके, so lines are of two types, straight line and curved line, right? Okay, so straight line and curved line, two types of line होते हैं, straight line और curved line, straight line और curved line, right? Now type of straight line के types कितने होते हैं? तो types of straight line आज हम लर्न करेंगे, right? right? Straight line, these are known as straight line, right? और इसको straight line में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन में ये स्ट्रेट तो है, तो इसके भी टाइप होते हैं। इसको बोलते हैं, जो इस तरह से जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन। स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जो ऐसे जा रहे हैं, जैसे आपको पता है हम एडिशन करते हैं तो वर्टिकली, मैंने आपको ये वर्टिकली करो, फिर हमने सीखा कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन में करो। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और एक हो गया स्लांटिंग लाइन। क्या हो गया? स्लांटिंग लाइन। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंड जो टेढ़ा जा रहा है, स्ट्रेट है लेकिन टेढ़ा जा रहा है, जैसे हम ट्राइंगल बनाते हैं, स्ट्रेट ही बनाते हैं, राइट। ट्राइंगल हमारा सीधा बना, लेकिन लाइन स्लांटिंग आ गई, लाइन से स्लांटिंग, सो दैट इज नोन एज स्लांटिंग लाइन। सो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लांटिंग, थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी ये हमने देखा, राइट। विच वन? हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ऐसे जाती है, जिसको आप स्लीपिंग लाइन बोलते थे जब आप छोटे बच्चे थे, तो क्या बोलते? स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, तो स्टैंडिंग लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, स्लीपिंग लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो स्लांट टाइप का होता है उसको बोलते हैं स्लांटिंग लाइन। क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस और नो? ओके, वेरी गुड माहिर। ओके, थैंक यू बच्चा, थैंक यू एवरीवन। ओके, सो ये हो गए टाइप्स ऑफ लाइन, राइट। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने बताया, स्ट्रेट है, स्लांटिंग भी किया लेकिन स्ट्रेट किया, स्लांटिंग भी किया लेकिन स्ट्रेट किया, वर्टिकल किया तो भी स्ट्रेट किया, हॉरिजॉन्टल किया तो भी स्ट्रेट किया, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। नाउ सेकंड इज पैरेलल लाइन। व्हाट आर द पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन क्या होता है?
व्हेन टू लाइंस आर गोइंग इक्वली, दोनों साथ में जा रहे, देखो ये लाइन और ये लाइन दिख रहा है, ये आपको गैप, राइट, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे वो लोग, एक दूसरे, जैसे हम रोड पे जाते हैं, राइट, हम रोड पे जाते हैं, दिस इज द रोड, हम रोड पे क्या सीधे सीधे जा रहे हैं, बट वी आर फेसिंग दैट दो लाइन से वहां पे, राइट, बट ये दोनों लाइन साथ में नहीं होती है। आपने देखा कभी ये रोड में जा रहा है तो यही रोड, ये दोनों रोड साथ में नहीं होते, वहां भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन दोनों साथ साथ जाते हैं। मीन्स अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो इसको भी क्रॉस कर रहे हैं, इसको भी क्रॉस कर रहे हैं, राइट। नाउ सपोज ये आप देख रहे हो स्केल, सी यहाँ भी लाइन है एंड यू कैन सी यहाँ भी लाइन है, राइट, दोनों देखो साथ बने हैं, ये दोनों एक साथ कभी मिलेंगे नहीं, ये अपनी राइट पे जा रहा है, ये अपनी राइट पे जा रहा है, ये यहाँ पे दिशा में जा रहा है, ये यहाँ, दे आर गोइंग इन ऑन डायरेक्शन, बट उन लोग साथ में चल रहे हैं तभी जाके उनका रास्ता होता है। तो दिस इज नोन एज पैरेलल लाइन, दिस इज नोन एज पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल लाइन। The lines L and M have the same distance between each other, but they do not meet each other. आप देखोगे इन दोनों का जो गैप है ये सेम होता है, राइट, बट ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, कभी मिलेंगे नहीं, जैसे ये they will not meet together, और उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। दोनों का साथ में डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे हम रोड पे जाते हैं, आप रोड पे देखोगे कि रोड यहाँ बन रहा है, बहुत और इक्वल, ये रोड यहाँ पे गाड़ी जा रही है तो पूरा एकदम आपको दिखेगा कितना अच्छा चौड़ा रोड है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, और अगर हम यहाँ से गाड़ी मूव करें तो दोनों साथ साथ हमारे साथ चल रही है, बट वो मिलते नहीं है, दे वोंट मीट ईच अदर, एंड दैट इज नोन एज पैरेलल लाइन। एल एंड एम आर पैरेलल, डिस्टेंस यहाँ पे सेम होगा, आप मेजर करोगे यहाँ पे कभी कहीं रोड में डिस्टेंस यहाँ दोनों का सेम होगा, बट दे नेवर मीट ईच अदर, so this is known as parallel line, this is known as parallel line, right, parallel line, okay, these are known as parallel line. Now अब एक लाइन होता है intersecting line, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसको बोलते हैं intersecting line. What we know on this intersecting lines, right? These are known as, जैसे suppose ये U line है, ये V है, when U and V are intersecting, right? इसको O नाम दीजिए, ये जो point है यहाँ intersecting करते हैं, that is known as point. These lines, इस line को हम बोलते हैं intersecting line, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, that is known as intersecting line, right? उसको हम intersecting line बोलते हैं। बहुत बार आप देखते होंगे कि ये जा रहा है, यू नो, हम जब लेडर सीढ़ी चढ़ते वो लकड़ी की आती है या स्टील की, यू नो, उसमें क्या होता है, यू कैन सी, ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ क्रॉस करते हैं, आप देखते हो लेडर, आपने सीढ़ी देखी होगी, राइट, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ ये क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ ये क्रॉस कर रहे हैं, so these are known as intersecting line। तो ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन, ये देखो दो पैरेलल है, बट अगर ये कट कर रहा है, ये वाला लाइन यहाँ पे देखो क्रॉस कर रहा है, ये देखो क्रॉस कर रहा है, तो दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक कॉमन पॉइंट में क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक कॉमन पॉइंट में क्रॉस कर रहे हैं, राइट, एक कॉमन पॉइंट में क्रॉस कर रहे हैं, राइट, तो दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो यहाँ पे हमने लाइन बनाया, राइट, टू पैरेलल लाइन बनाया, जब सीढ़ी बनाते हैं, लेडर बनाते हैं, तो ये, अब ये लाइन जो यहाँ क्रॉस किया, सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट में जो वो क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हाट वी नो कॉल दिस इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हो गया हमारे लाइन के बारे में, जितने लाइंस के बारे में। स्ट्रेट लाइन पढ़ा हमने, स्ट्रेट लाइन की टाइप्स पढ़े, कितने स्ट्रेट लाइन होते हैं, पहले लाइन होती है स्ट्रेट और कर्व। अब स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, देन स्लैंटिंग, फिर पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग। ये भी स्ट्रेट है, देखो लाइन स्ट्रेट है, लाइन स्ट्रेट है, ये तो क्रॉस स्लैंटिंग में जा रहा है, क्रॉस का, बट लाइन्स आर स्ट्रेट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइन, right, these are the types of straight line, these are the types of straight line। लाइन दो टाइप की होती है, स्ट्रेट, कर्व। कर्व मैंने आपको रेनबो दिखाया और स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे टाइप दिखाए,
horizontal, vertical, slanting, parallel, intersecting. Done? Yes, very good Adya. Very good. Very good bacha. So these are the straight line and all that. Right? Now come to the page number 158. हमारा lines complete. Next page. लाइन पॉइंट कर लिया, लाइन कर लिया, अब हम लाइन सेगमेंट करेंगे. व्हाट इज लाइन सेगमेंट? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? राइट, द शॉर्टेस्ट पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट. कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, राइट, और यहाँ हम एंड करते, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड कर दिए. पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड कर दिए. राइट, हमने एरो नहीं दिया. एरो मतलब कंटिन्यू जा रहा है. एरो नहीं देते हैं ए एंड बी. तो ये होता है लाइन सेगमेंट, जिसका एक डेफिनेट वे होता है. मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया. दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट. उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. जैसे हम आपको बहुत बार बोलते हैं, यस, लास्ट क्लास में भी हमने किया था, टेक ए स्केल, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो आप क्या करते हो? लाइन 0 से लेके 5 तक गए. आपको पता है कि मैम ने 5 सेंटीमीटर बनाने बोला है, तो 0 तक, तो ये फिक्स हो गया, 5 सेंटीमीटर ही है. इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. जिसका फिक्स नहीं होता है वो लाइन, जिसका फिक्स पॉइंट दिया हुआ है कि ए में स्टार्ट होता है, बी में खत्म होता है, दैट इज, और शॉर्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट. राइट, और लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे ही, लाइक दिस, पॉइंट से. देयर इज नो एरो, नहीं होता है, क्योंकि एरो में लाइन बोलते हैं, एरो नहीं होता है. ये लाइन सेगमेंट है. राइट, सो दिस इज लाइन सेगमेंट. आद्या, व्हाट यू आर राइटिंग बच्चा? डन. ये हो गया लाइन सेगमेंट. जैसे यहाँ मैंने बताया ए बी टू लाइन, मेरा लाइन है एक विथ 2 पॉइंट, सी, ए पॉइंट बी पॉइंट, और एक छोटा सा डिस्टेंस हुआ. दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट. क्लियर? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट. डन. अब हमारा डन. Adya, what you writing, bachcha? Don't write this. Ray. What is that? Next is ray. No, you can write in your chat box, Vinikaria. अब हमारा हुआ ray. What is ray? रे क्या है? Have you seen the sun? सन को देखते हैं, हम पता है, सनलाइट देखते हैं हम, जो हमें लाइट देते हैं. जब सन के पास हम खड़े रहते हैं, हमें एक ये लाइन आती है, ऐसे रेज आती है. क्या आती है? रे. लाइट, वो एकदम ऐसे लाइट आती है, राइट. वो यहाँ से स्टार्ट तो होता है, पर एंड कहाँ होता है वो हमें नहीं पता है. उसको बोलते हैं हम रे. जो स्टार्टिंग तो हमें पता है, जैसे ये लाइट चालू है, राइट, वहां लाइट से हमें पता है एक छोटा सा ऐसा रे आ रहा है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है. एनीवे दे आर गोइंग. स्टार्ट पता है कहाँ से हुआ, बट नो एंडिंग. वो कहाँ तक जाती है वो हमें नहीं पता है. उसको हम रे बोलते हैं. रे, इसको हम रे बोलते हैं. स्टार्ट तो हमें पता है कहाँ से हुआ, पर ये एंड कहाँ से होगा वो हमें नहीं पता है. दैट इज नोन एज रे. उसको हम क्या बोलते हैं? रे. दैट इज नोन एज रे. क्लियर? ये हो गया हमारा रे के बारे में. कहीं लिखना नहीं है विनी, नोटबुक में लिखने के लिए मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी. अभी कहीं नहीं लिखना है. आई विल सेंड यू पीडीएफ, सब लिखना है. अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ समझ लो बच्चा. जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी आई विल मेंशन एवरीथिंग, राइट. अभी सिर्फ समझ लो बच्चा. राइट, तो ये हो गया रे. जैसे सपोज लो ओ बी, ओ से स्टार्ट हुआ, लेकिन कहाँ एंड हुआ वी डोंट नो. हमें पता ही ओ से स्टार्ट तो हुआ, पर कहाँ एंड हुआ वी डोंट नो, राइट. जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ पर एंडिंग नहीं पता है,
तो उसको हम बोलते हैं रे, उसको हम बोलते हैं रे, राइट। पहले हमने सीखा लाइन, जिसकी दोनों तरफ से एंडिंग पता नहीं है, एंड स्टार्ट हो गया वो एंड भी पता नहीं हमें कि मूविंग कर रहे हैं यहाँ मूविंग कर रहे हैं, वो हो गया लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन। फिर ये पता है हमें, फिक्स पॉइंट पता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हुआ, वो हो गया लाइन सेगमेंट। एंड थर्ड, स्टार्टिंग पता है लेकिन एंडिंग नहीं पता, तो वो हो गया रे, राइट। अभी लिखना नहीं है बच्चा, आई विल सेंड यू ए पीडीएफ, उसमें से आपको देख के लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना है, डोंट वरी। क्लियर? यस और नो? सो रे के बारे में हमने पढ़ लिया। और रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो स्टार्ट तो कहाँ, वो कहाँ एंड होती है वो हमें पता ही नहीं है। सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही है पर ये कहाँ कहाँ जा रही है, वी डोंट नो। इसलिए हमें स्टार्टिंग पता है बट एंडिंग नहीं पता है ना, दैट इज नोन एज रे। और इसका एंडिंग नहीं पता, इट मींस इट हैज इनडेफिनिट वे, कि कहाँ जाके एंड होगा वी डोंट नो दैट, राइट। इसका रे एंडलेस होता है, मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ एंड होता है, सो दैट इज नोन एज रे। स्टार्टिंग पता होता है लेकिन एंडिंग नहीं पता है, करेक्ट। और ये वन डायरेक्शन में ही एंड हो रहा है, मतलब यहाँ से तो चलोगे यहाँ से नहीं है, और ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जाएगा बेटा, तो इट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड एंडलेसली, क्योंकि हमें एंडिंग पता नहीं है। सो दैट आर रेज डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज open and closed figures. What is that? Closed and open figures. What is this? Closed and open figure क्या होता है? Figures जो पूरी तरह से पैक है उसको हम बोलते हैं closed, और जो open है कहीं ना कहीं से रास्ता है उसके जाने के लिए उसको बोलते हैं open figure. Now for example देखो, अब आप जब मैं ड्रॉ बना रही हूं तब आप देखना, यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, और यहां से स्टार्ट किया, और यहां चले 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 और यहां एंड किया, मतलब जहां से मैंने स्टार्ट किया वहीं मैंने एंड भी कर दिया, राइट। नाउ सी, आपको दिख रहा है कि ये पूरा इसमें कहीं भी जाने के लिए फिगर नहीं आती, किसी चीज को जाना है तो यहाँ रास्ता है ही नहीं, ये पूरा पैक्ड है। तो जो पूरा रास्ता पैक्ड है, नो वे, दैट इज नोन एज क्लोज फिगर। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज फिगर, जिसका हमें व्हेन वी ड्रॉ दिस फिगर वी स्टार्ट ड्रॉइंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड टू द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट में एंड होता है, तो दिस फिगर आर नोन एज क्लोज। मैंने यहां से सर्कल स्टार्ट किया और यहां पे ही एंड किया, यहां से स्टार्ट किया यहीं पे आके एंड किया, इट मीन सेम पॉइंट में मैंने इस पॉइंट से, देखो ये पॉइंट दिया, राइट, आई हैव टू ड्रॉ अ फिगर। इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इसी पॉइंट में मैंने स्टार्ट किया, इसी पॉइंट में मैंने आके एंड किया, एंड इसी पॉइंट में हुआ, कोई भी गैप नहीं है। इट मीन मेरी पेंसिल मूव ही नहीं की, यहां से गया यहां से गया यहाँ, लेकिन डू लाइक दिस, यहां से स्टार्ट किया, यहां से गया यहां से गया यहाँ, मैंने उठाया नहीं पेंसिल, पूरा बंद करके ही हिला मेरा पेंसिल, तो दैट इज नोन एज कहीं भी जगह नहीं, इसको हम बोलते हैं क्लोज फिगर। दिस इज नोन एज क्लोज फिगर, देयर इज नो वे, सेम पॉइंट से चालू किया सेम पॉइंट में एंड किया, राइट। अब कुछ फिगर ऐसे हैं, यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं, राइट, देखो आप, बस यहां मैंने एंड कर दिया, स्टार्ट यहां से किया एंड यहां से किया। अब आप देख रहे हो कितना रास्ता है, मीन्स किसी को आना है तो यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है, एंड नहीं है। फिगर ओपन है, इसको बोलते हैं ओपन फिगर। क्या बोलते हैं? ओपन फिगर, क्योंकि जहां से मैंने स्टार्ट किया मैंने वहां एंड नहीं किया, यहां से स्टार्ट किया, एंडिंग मेरा यहां हुआ, दो पॉइंट मिला मुझे, एक पॉइंट दो पॉइंट, तो दिस इज नोन एज ओपन फिगर, दिस इज नोन एज ओपन फिगर, इसको हम बोलते हैं ओपन फिगर, राइट, इसको हम बोलते हैं ओपन फिगर। यहां से स्टार्ट किया, यहां मैंने एंड कर दिया, इट मींस ये देखो पूरा ओपन है, कोई भी अंदर आ जा सकता है, राइट, कोई भी अंदर आ जा सकता है, दैट इज नोन एज ओपन फिगर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
क्लोज्ड एंड ओपन। मतलब आपको रास्ता मिल रहा है, पॉइंट एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट में एंड होता है, तो दैट इज नोन एज ओपन फिगर। और जिसका एंड सेम ही पॉइंट में होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड फिगर, राइट। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 8.1, पेज नंबर 160, पेज नंबर 160। अभी आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना था कुछ। जब मैं आपको पीडीएफ अच्छे से भेजूंगी इसके, पूरा मेरे पास रेडी है, आई विल सेंड यू, बट नॉट नाउ। जब सारे सेक्शन में हो जाएंगे देन आई विल सेंड यू, एंड देन आप अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हो या उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हो। नॉट नीडेड, राइट। ये था दिया। नाउ सी, क्लासिफाई द फॉलोइंग लाइन। सबसे पहला है पेज नंबर 160। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। आपको बताना है कि ये लाइन है, क्वेश्चन नंबर 1, ओके। ये लाइन सेगमेंट है कि रे है। नाउ यू कैन सी दिस विथ एरो, राइट, विथ पॉइंट्स ओनली। नाउ आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो, हु इज गिविंग मी आंसर? यस, नो, वी हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक बच्चा, इन योर टेक्स्ट बुक। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 160, एक्सरसाइज 8.1। उसमें आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नॉट इन नोटबुक। टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। जहां नोटबुक की जरूरत होगी आई विल टेल यू, अभी टेक्स्ट बुक में लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 खाली आपको टेक्स्ट बुक में करना, नोटबुक में करना पड़ेगा। एवरीथिंग यहाँ हो जाएगा, ओनली नंबर 4, राइट। नाउ सी, व्हाट इज दिस? क्या है ये? हु इज गिविंग आंसर? नंबर 1 क्या है? Javier, write your doubt in your chat box. Write your doubt in your chat box. I'm not going to unmute anyone for today, please. You are disturbing too much. What number D? Kiona Patel. What is this D? Kiona, what is D? D means? Kiona Patel, I'm asking you. Yes. Yes, Dhyani, give me answer. What do we do if we are ahead? What ahead? Tell me this, which line is this? Which line is this? What is this? ये लाइन है, राइट। आपको दिखाना है कि लाइन है कि लाइन सेगमेंट है या रेज है, तीनों में से। तो क्या है ये? ध्यानी कारिया, माहिल गज्जर, माहिल, माहिल, आयु दे बच्चा। Yeah. हाँ, what you are telling? Tell me properly. Ma'am,
I want to say that this is a segment line. ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, राइट? क्योंकि यहाँ पे एरो नहीं है, तो ये लाइन सेगमेंट है, राइट? ओके, नाउ नंबर 3, नंबर सी, आपको स्मॉल स्मॉल वही टेक्स्ट बुक में ही लिख लेना है, राइट बच्चा? नंबर सी इज रे, क्योंकि सिर्फ एक ही जहाँ जा रहा है, तो रे यू कैन राइट, ऊपर में आप लिख सकते हो रे, एंड दिस इज ऑल्सो रे, ये भी रे है। आपको जहां जगह मिले यू कैन राइट, सी लाइक दिस, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, रे, यू कैन राइट लाइक दिस, राइट? आपको उसमें से बताना है कि लाइन है, कि लाइन सेगमेंट है या रे है। What queries anyone else? Please tell me. There, Balluri, what are you writing? Very good, Rishvi. Javier, I'm not getting your language. I know you don't have any queries, बस खाली आपको मैम से बस unmute करा के कुछ बोलना है, right? I'm not going to do unmute. I'm sorry for that. Very good, Vinikaria. See, very good, Kiona. Now number 2. 2 में आपको बताना है लेबल द लाइन एज ए स्ट्रेट और कर्व। लाइन स्ट्रेट है या कर्व है? तो आपको पता है अगर सीधा लाइन है तो स्ट्रेट, और लाइन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, यस Straight. तो व्हाट? And B and C are curved. यस, तो नंबर ए इज स्ट्रेट, बी और सी आपका वेरी गुड ध्यानिकार्य, वेरी गुड। सो नंबर 2 ऑल्सो डन। नाउ नंबर नंबर 3, नंबर 3, वेरी गुड ध्यानी, वेरी गुड क्यों। नंबर 3, आइडेंटिफाई दिस लाइन एज ए पैरेलल और इंटर, या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग, राइट? तो जो आपको पता है क्या होता है, नंबर 2 डन। ओके, नाउ नंबर 3, नंबर ए, आप देख रहे हो ऐसे लाइन जा रहे हैं, राइट? यस, Intersecting line. यस, वेरी गुड माहिल, वेरी गुड। ये इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट? तो आपको वहीं पे थोड़ा सा स्पेस करके यहाँ लिख देना है इंटरसेक्टिंग लाइन। And ma'am, C is also intersecting line. B इज पैरेलल लाइन बच्चा, हाँ, C इंटरसेक्टिंग है, B इज पैरेलल, B इज पैरेलल, Parallel line. yes, and C is intersecting। C कौन सा लाइन है? Intersecting, ma'am. Yes, intersecting। and D? So, parallel line, ma'am. Parallel line, yes, Smile, very good, parallel line। So 3 done। अब आपको खाली 4 नंबर आपको नोटबुक में करना होगा। What is that? You have to draw the line, draw the line segment। आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, 6 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। How you will do? Take a ruler, scale लो, सेंटीमीटर इज गिवन ओवर हियर, कोई भी सेंटीमीटर आपको करना है, 0 से स्टार्ट करोगे, तो 5 है तो 0 to 5 तक जाओगे, ऐसे रखोगे नोटबुक में, राइट? 0 में पॉइंट करना, 5 में पॉइंट करो और ड्रॉ कर दो। So and write down, give a name AB and 5 centimeter like this you have to draw। तो 5 आपको नोटबुक में करना, only question for 5 in notebook। Done this one? Done, ma'am. Ayansh, 2 number is okay। Ayansh, 2 number is very easy बच्चा। 2 में आपको लिखना है कौन सा लाइन स्ट्रेट है और कौन सा कर्व है। तो नंबर ए स्ट्रेट है, बी और सी दोनों कर्व है, ओनली दैट मच बच्चा। कंप्लीट दिस।
नाउ 4 आप क्लास में होमवर्क करोगे नोटबुक में, एंड 5, 6, 7 वेरी इजी। आपको 5 में मेजर करना है लाइन सेगमेंट, स्केल लेना है और मेजर करना है कि लाइन कितने कितने सेंटीमीटर की है, लाइक दिस। टेक अ स्केल, मेजर, देखो 5, 7 सेंटीमीटर, तो राइट डाउन 7 सेंटीमीटर। ये वाला 5 सेंटीमीटर, राइट डाउन 5 सेंटीमीटर। इसमें आपको लिखना है लाइन हॉरिजेंटल कितनी है, वर्टिकल कौन सी है और स्लैंटिंग कौन सी है, राइट। नंबर 6 में तो ट्राइंगल में 2 स्लैंटिंग है और एक हॉरिजेंटल लाइन, बस आपको लाइन आइडेंटिफाई करनी है। और नंबर 7 में ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर। जहां फिगर आपको दिख रहा है ओपन है वहां ओपन फिगर लिखो, जहां पूरा क्लोज है, ये हाथ का कर दिया हुआ इट इज फुल्ली क्लोज, तो आपको वहां क्लोज लिखना है। जहां ओपन है ओपन, क्लोज ओपन, तो ये भी ऑल्सो क्लोज। कहीं जगह ही नहीं है तो वो क्लोज, जहां जगह है वहां ओपन। So this is your homework you have to complete, right? Done? Please write your attendance now. Give me your attendance time. Write in your chat box. And जिसको भी queries है, call me at 5 to 7 because अभी तो मैंने everything I have cleared. Unnecessary जो भी queries है आप मुझे call करके पूछ लेना. I will answer you, don't worry. But not in class, right? Because you are disturbing everyone, Havya Joshi. So sorry for that, bachcha. I can't do that. Very good, Bhavika. Naksh Ayans Rishvi. Naksh Ayans Rishvi. Very good, Naksh. Arni Day Balodia Pant Borania. Arni. Okay, very good, Arni. Day Balodia Pant Borania. Sorry, yes, Pant Borania. Atharva Chauhan Adya. Atharva Chauhan Adya. Hans Darji, very good, becha. Yes, Rishvi got. Shreya Detroja, Pallavi Giri. Shreya Detroja, Pallavi Giri. Okay, Avya. Avya Joshi, Dhyani Karia, Vini Karia. Yes, Pallavi, got your attendance, becha. Yes, Vini, yes. Shreya is there, Shreya. Shreya Detroja. And अथर्व। मन कोठिया, अंश कोठिया। ये ध्यानी आपका भी मिल गया बच्चा, वेरी गुड अंश। समर्थ मेहता, समर्थ मेहता, वेरी गुड बच्चा। अच्युत पटलिया, ब्रिंसी पटेल, ओके मन कोठिया गॉट। कियोना पटेल, मानवीर, इशिका, यस कियोना। अमृता, यस इशिका। अमृता शुक्ला, भाविका सिन्हा, रेशमा, जैनम, धय, माहिल, यस मानवीर, जैनम, धय थोड़िया, माहिल गज्जर, यस माहिल, धय थोड़िया इज देयर, धय एंड जैनम, yes you can leave bacha. Yes Manveer got. Okay bacha, bye bye, have a nice day, see you soon. Happy Monday, ma'am. Have a great Happy Monday bacha. Bye bye, ma'am. Bye bacha. Bye bacha, bye everyone, take care. Bye ma'am. Thank you ma'am. Have a nice day. Have a nice Bye ma'am. Thank you. Happy day, ma'am. Bye bacha. Happy Monday. Bye ma'am. Thank you ma'am. Listen, bye. Put that. Who was he?